بھینسا عیدگاہ میں نماز عید الفطر ٹھیک 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اس ضمن میں اہم اجلاس مسجد عثمان میں زیر صدارت صدر عیدگاہ کمیٹی فیض اللہ خان منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں کمیٹی کے اراکین مفتی عبدالغنی قاسمی، مولانا شاہد غفران قاسمی، حافظ محمد لطیف، حافظ منیر الدین، عبدالماجد نمائندہ کونسلر و جنرل سیکریٹری مجلس محمد شاہد، ملن ہوٹل میر اعجاز علی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں بھینسا عیدگاہ پر نماز عید الفطر ٹھیک 8:30 بجے ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صدر عیدگاہ کمیٹی اور اراکین نے امت مسلمہ سے قبل از وقت شرکت کی خواہش کی۔ ناظرین آداب، جیسا کہ ہم بات کریں آج بھینسا شہر میں، ناظرین آج ہمارے ساتھ بھینسے کی جانی مانی شخصیت موجود ہے، غنی مفتی صاحب۔ آئیے ان سے تفصیل میں معلومات کریں گے اور پوچھیں گے کہ عید کی نماز کا ٹائم کب تک رکھے اور کب سے کب تک عید کی نماز ادا کی جاتی۔ آئیے ایسے ہی ہمارے ساتھ مشہور مفتی صاحب ان سے تفصیل میں معلومات کریں گے۔ سر آپ کا BBN نیوز میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ سر بتائیے پبلک کو کیا مسجد کا ٹائمنگ، نماز کا ٹائمنگ کب رکھے عید کے پہ، یہ بولیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھینسا شہر میں عیدگاہ پر انشاءاللہ نماز عید الفطر ٹھیک 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آج جو ہے میٹنگ ہوئی تھی عیدگاہ کمیٹی کی، سب اراکین، صدر، جنرل سیکریٹری جمع ہوئے تھے اور باہمی مشورے سے طے کیا گیا موسم کے لحاظ سے کہ 8:30 بجے نماز عیدگاہ پر جو ہے ادا کی جائے گی۔ وہ اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سے پروگرام شروع ہو جاتا ہے، فضائل عید الفطر وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں، بیان ہوتا ہے، اس کے بعد طریقہ نماز عید الفطر کا طریقہ بتلایا جاتا ہے، جماعت کھڑے ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے تو عید الفطر کے اس موقع پر تمام ہی برادران اسلام کی خدمت میں پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اس عید کو پورے عالم اسلام کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بنائے۔ بھینسا شہر سے بھی لوگ جو ہے وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں اور اطراف میں جو دیہاتوں میں عیدگاہ نہیں ہے اور وہ لوگ ہمیشہ بھینسا آ کر نماز عید ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وقت سے پہلے عیدگاہ پہنچنے کی پوری فکر کریں اور تقریباً 8 بجے اگر پہنچ جائیں گے تو پورا فائدہ ہوگا اور 8:30 بجے اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کے لیے موقع بھی ملے گا اور 8:30 بجے جو ہے نماز عید ادا کی جائے گی۔ ابھی معلوم ہوا کہ سعودیہ میں جو ہے کل عید منائی جانے والی ہے، وہاں پر اعلان ہو چکا ہے۔ اس کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ پرسوں ہمارے پاس بھی ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم جو ہے جب تک رؤیت ہلال کمیٹیاں موجود ہیں ہمارے ملک میں، اور جو ہے اس لیے کہ کل 29واں روزہ ہوگا اور 29واں جو چاند ہوتا ہے اس کا نظر آنا جو ہے شریعت میں جو اصول ضابطے عید کے چاند کے بتائے گئے ہیں اس حساب سے جو ہے نظر آنا اس کا ضروری ہے۔ یعنی اگر جو ہے مطلع صاف نہ ہو، ابر آلود ہو، تو ایسی صورت میں کم از کم 2 ثقہ آدمیوں کا چاند کو دیکھ کر گواہی دینا یہ ضروری ہے۔ اگر مطلع صاف ہو، آسمان بالکل صاف ہے، ابر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گواہی چلنے والی نہیں ہے، بلکہ ایک جمع غفیر کا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے کہ جن کا عام طور سے جھوٹ پر اتفاق جو ہے ناممکن ہے، اس لیے اس کو جمع غفیر کہتے ہیں اور ایک جو ہے جمع غفیر کا بڑی تعداد میں لوگوں کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، رؤیت ہلال کمیٹیاں موجود ہے، ہم کو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کل چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور جو ہے دیکھنے کے بعد اگر کہیں پر چاند نظر آئے تو وہ وہاں کے لوگوں کو بتائے اور اس کے بعد جو ہے گواہی دے اور جو ہے اس کا جو ہے رؤیت ہلال کمیٹی کے جو کل نمبرات آئیں اور وہ لوگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہم سب اس کے تابع ہے۔ اگر کل چاند کے نظر آنے کا فیصلہ رؤیت ہلال کمیٹیوں کی جانب سے ہوگا تو انشاءاللہ ہفتے کے دن عید منائی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ جو ہے پرسوں ہی یعنی اتوار کے دن عید ہوگی۔ سعودیہ کے چاند سے جو ہے حتمی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنا چاند ہمارے اپنے ملک میں چاند کا نظر آنا کل ضروری ہے۔ اس لیے یہی چند باتیں اس موقع پر جو ہے عید کے متعلق کہنی تھی جو آپ کے گوش و گزار کر دی گئی۔ یہ تھے ہمارے مفتی صاحب جو آپ کو کافی اچھا بتائے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد ہی عید منائی جائے گی۔
ये सर का कहना है। और सर ये कह रहे हैं कि जो खेड़े गाँव के जो मुस्लिम जो लोग हैं उनको इत्तला दे रहे हैं, उनको खबर पहुंचा रहे हैं कि वो ईद की नमाज़ 8:30 बजे अदा की जाएगी, मगर उनको ये कहना है कि वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करें। और सर ये भी कह रहे हैं कि भैंसे के मुसल्लियों को भी ये कह रहे हैं कि वो भी जल्दी आने की कोशिश करें। ये मुफ्ती साहब का कहना है। और ईदगाह पे और भैंसे का जो ईदगाह जो मशहूर जो ईदगाह है वो ईदगाह पे कम से कम 40 से 35 हज़ार भी आदमी नमाज अदा कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा ईदगाह है, कोई आपको कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, सारा इंतज़ाम किया गया है। अगर पानी आए तो पानी से भी बचा जाता, धूप है तो धूप से भी बचा जाता। ये मुफ्ती साहब का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। बैतुल-माल जमीयतुल हदीस भैंसा की जानिब से तकरीबन 500 ईद पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई। बता दें कि गुज़िश्ता 15 साल से बैतुल-माल जमीयतुल अहले हदीस रमज़ान के मौके पर यह खिदमात अंजाम दे रहा है। इस ज़िमन में देखिए BBN के नुमाइंदे रब्बानी की ये रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं अहले हदीस के बारे में। और भैंसे में अहले हदीस की मस्जिद तामीर हुई होकर 15 साल हो रहा है। और अहले हदीस की जमात के लोग ईद को जो ईद पैकेट देते हैं और काफ़ी गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं अहले हदीस जमात वाले। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद है इस मस्जिद के शेख, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे कि अहले हदीस किसे कहते हैं और अहले हदीस क्या चीज़ है। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। शेख, बताइए अहले हदीस का मतलब क्या है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले हदीस कोई नया फ़िरक़ा तो नहीं है, जैसा कि लोगों में मशहूर है और बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में ये डाला गया है कि ये अंग्रेज़ की औलाद हैं या अंग्रेज़ों की पैदावार हैं। ऐसी कोई बात नहीं, सरासर झूठ है। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकाम पर सही अंदाज से चलते हैं। और हमारा वजूद तो उसी वक्त से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया था। हम कोई नया फ़िरक़ा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस जो शुरू के असलाफ़ हमारे गुज़रे हैं, उन सलफ़ के नक्शे कदम पर चलने वाली ही जमात है और कोई नई चीज़ें इस जमात में नहीं। और हर कोई पूरी दुनिया में कि अहलुल हदीस के यहाँ बिदात नहीं पाई जाती है और किसी ज़ईफ़ रिवायत पे हम अमल नहीं करते। कुरान और हदीस में जो मौजूद है, सही हदीस को जो सनद वहाँ तक पहुँचती है, वही हमारा मज़हब है और हम उसी पे अमल करते हैं। और सर, आपसे ये सवाल है, जैसा कि ईद का चांद सऊदी अरब में नज़र आया, अपने भैंसे में हफ्ते के दिन ईद होती, ऐसा पब्लिक कह रही है कि ईद देखकर ही, चांद देखकर ही ईद मनाया जाएगा, या भैंसे में यानी सऊदी अरब के हिसाब से ईद मनाएंगे, ये बोलिए सर। हाँ, यकीनन इंशाअल्लाह, क्योंकि सऊदी अरब में आज ईद है और कल चाँद नज़र आ चुका है, लिहाजा ये महीना सऊदी अरब के लिए भी 29 का रहा और हमारे पास भी ये महीना 29 ही का होगा। अगर चाँद निकलता है तो इंशाअल्लाह चाँद निकलने के बाद फिर हम अगले दिन कल हमारे पास जमात होगी इंशाअल्लाह 6:45 पर, और हम तमाम मुसलमान और तमाम अहले ईमान मिलकर जो है ईद उल फितर की नमाज़ अदा करेंगे। सर, ईद उल फितर की नमाज़ आप भैंसे में ये ईदगाह पे अदा करेंगे या आपका आपके कोई जगह है, या आपकी ईद की नमाज़ का टाइम कितने बजे रखे, और मुसल्लियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कितने बजे ईद की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बारे में बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी ज़िंदगी में ईद की नमाज़ आई, सिर्फ मजबूरी में मस्जिद में अदा करने का हुक्म दिया गया है। बारिश तो आदमी मजबूरी में मस्जिद में अदा कर सकता है, लेकिन सुन्नत तरीक़ा यह है कि ईद उल फितर की नमाज़ आबादी से बाहर निकलकर मैदान में अदा की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिशें की। गुज़िश्ता साल गवर्नमेंट का एक स्कूल मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम तमाम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी कोशिश जारी हमारे ज़िम्मेदारान की और तमाम कमेटी वालों की कि वो उन स्कूल के ज़िम्मेदारों से बात करेंगे। अगर बात तय हो जाती है तो इंशाअल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ 6:45 पर उसी ग्राउंड में अदा की जाएगी। आपसे और कि लास्ट सवाल है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए लेडीज़ को भी आप दावत दे रहे हैं, लेडीज़ भी आके नमाज़ पढ़ सकती है, मगर पब्लिक ये कह रही है कि गलत है, लेडीज़ आके बाहर निकल के नमाज़ नहीं पढ़ना, ये गलत बात है, ये अहले हदीस का ये रिवाज गलत है, ये पब्लिक के दिमागों में ये जहन बैठेगा। उसके बारे में क्या कहेंगे सर, पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ख़वातीन मस्जिद में अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की गरज से आती हैं, और मस्जिद से अगर ख़वातीन को रोक दी जाए तो उनके घरों में इस्लाह ही नहीं हो सकती। और दूसरी बात तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल वाज़ेह हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनऊ बिइमा
को मस्जिदों में जाने से मत रोको। ये हदीस वाज़ेह रिवायत मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग मस्जिदों में या उसके जो है जहाँ इंतज़ाम है वहाँ जाने से रोका जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की तमाम मकतब फ़िक्र में शऊर बेदार हुआ है और इस पर मुस्लिम परसल्ला बोर्ड की तरफ से कानून भी बनाया गया है कि अब मस्जिद जहाँ जहाँ भी होगी कायम होगी, नए सिरे से मुस्लिम परसल्ला बोर्ड के कायदे के और रूल के हिसाब से वहाँ ख़वातीन के लिए बंदोबस्त किया जाए। इस पर बाकायदा कानून पास किया गया है। हम तो बहुत पहले से इसके जो है हिमायत में है और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस की मसाजिद जहाँ पर भी है वहाँ अगर जगह बड़ी है उस मस्जिद की तो वहाँ ख़वातीन का इंतज़ाम रखा गया है। लिहाजा हम तो सही हदीस पे अमल करते हैं और यही बताते हैं कि औरतें भी जिस तरह मर्द जो है इस्लाह के मुतहम्मिल हैं, इस्लाह चाहते हैं, वैसे ख़वातीन भी इस्लाह के मुतहम्मिल हैं। लिहाजा उन्हें भी जो है अनपढ़ जाहिल और दीन से नाशना ना रखा जाए, उन्हें भी मर्दों के साथ जो है दीन के तमाम कामों में शरीक हो जाए। और सर आपसे ये सवाल कर देंगे, एक लास्ट सवाल है सर कि पब्लिक कह रही है कि आपको पैसा अंग्रेज़ आपको पैसा दे रही, आप अहले हदीस में जो जाइन हो रहे, जो मुसल्ली जो आके नमाज़ पढ़े उनको आप पैसा दे रहे और पैसा दे के बुला रहे। सर ये पब्लिक के जहन में एक बात बैठ गई है कि अहले हदीस वाले पैसा दे रहे बुला रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ, आने वालों को पैसा दिया जाता है। मैं तो समझता हूँ यहाँ जो आता है उससे पैसा लिया जाता है, क्योंकि मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में 140 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। सबको पता है एक बच्चे की माहाना फ़ीस 100 रुपये है। साथ में ही अगर किसी गरीब या जो है कोई लाचार मजबूर की मदद करनी होती, कोई दवाखाने में एडमिट है, उस पर हालात अच्छे नहीं है, तो बाकायदा फ़ौरी तौर पर हमारी मजलिस मुशावर जो कमेटी की मजलिस है जो मस्जिद की, वो बैठती है और बाकायदा उस पर बात करके तमाम अहले खैर हजरात जो मस्जिद के मुसल्ली हैं, अल्लाह ने जिन्हें माल दिया है, तमाम लोगों से वो कमेटी के लोग चंदा करके उस मरीज़ तक पहुँचाया जाता है। यहाँ ये बात झूठ है कि सऊदी अरब से पैसा आता है और उसके बाद इस मस्जिद में आने वालों को पैसा दिया जाता है, ऐसे कुछ बात नहीं है। कहीं से कोई रकम नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह जमात और जमीयत की जितने लोग हैं, मुसल्लियान, कमेटी मेंबरान जितने लोग हैं, सब बाहम ताउन से और बाहम पैसे मिलाकर किसी गरीब और किसी लाचार की मदद की जाती है और इसी तरह से जो है दूसरे रिफाही कामों में सर्फ किया जाता है। ये तमाम बाहिमी ताउन से होता है, किसी के कोई रकम यहाँ नहीं आती। और शेख साहब आपने तो काफ़ी अच्छी जो मस्जिद में जो पब्लिक को अच्छा मैसेज दे रहे, पब्लिक को दीन के बारे में बता रहे, मगर इस अहले हदीस के मस्जिद की जो कमेटी है जो काफ़ी 10-15 साल से जो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे, जो अपने खुद के जेब के पैसा भी लगा के इस जमात को आगे बढ़ा रहे और गरीब लोगों की मदद हर वक्त उनके गरीब लोगों के सामने खड़े रहे। ये कि अहले हदीस वाले अहले हदीस वाले कोई मदद करने वाले नहीं है और उल्टा उन्होंने खुद इस जमात में दाखिल करने के लिए हमको मजबूर कर रहे, हमको खींच के लाने की कोशिश कर रहे, ये पब्लिक का कहना है। मगर इस कमेटी ने जो भैंसे में जो तारीफ़ काबिल काम किया, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? ये बोलिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जमात का ख़ासा ये है कि ये जमात जब कोई रिफाही काम करती है तो आवाम से 1 रुपया भी नहीं लेती। इसकी जीती जागती मिसाल ये है कि इस शहर में इससे पहले जो है हजामा कैंप लगाया गया था रेनबो स्कूल में, मुझे अच्छे तरीके से याद है। उसमें 150 रुपये फ़ीस रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस भैंसा की तरफ से जब ये कैंप लगाया गया तो वो कैंप पूरा फ्री में किया गया और किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। ये उसकी मिसाल है। लिहाजा रिफाही कामों में जमात अहले हदीस की जितने भी अफराद हैं, जो भी काम भैंसे में हो रहा है, किसी आवाम से कोई रुपया नहीं। हाँ, मैं इससे पहले भी कह चुका, मुसल्ली जो नमाज़ पढ़ने आते मस्जिद में जो ज़िम्मेदार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ताउन की गुजारिश की जाती है, वो ताउन करते हैं और उसी से दूसरे काम अंजाम दे जाते हैं। लेकिन ये बात जहन में रहे कि आवाम से या पब्लिक से अल्हम्दुलिल्लाह कोई रकम नहीं ली जाती। और रिफाही कामों में सिर्फ यही नहीं, कोरोना के दौर में सबको पता है, पूरा भैंसा जानता है और पूरा शहर जानता है कि मालेगांव का काढ़ा सबसे ज़्यादा मिक़दार में पिलाने वाली जमात इस भैंसे में जमीयत अहले हदीस भैंसा की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अहले हदीस सिर्फ अल्लाह और हुजूर पे चलने वाली है और किसी से 1 रुपया, किसी से 2 रुपये लेने वाली नहीं। आप अपने जान का सदका, माल का सदका दे सकते हैं और अहले हदीस किसी को पैसा देने वाली नहीं है। जो वक्त है, बुरा वक्त आया, उसको मदद करने वाली जमात है। अहले हदीस सिर्फ हक़ और ईमान की बात करने वाली है, ये शेख साहब का कहना है। और शेख साहब ये भी कह रहे हैं कि जब भैंसे में जो तारीफ़ काबिल, जो कमेटी ने जो काम किया, काबिल तारीफ़ किया, उसकी तशाहिर करते हुए और उसकी तारीफ़ करते हुए शेख साहब ने ये कहा है कि अहले हदीस
अमल करने की और उस पर जहन और तवज्जो करने की जमात है, दीन को सिखाने की और उस पर अमल करने की जमात है। कोई किसी के पास से पैसा नहीं आता और कोई सऊदी अरब से पैसा आने वाला नहीं है, कोई अंग्रेज़ पैसा देने वाला नहीं है। अहले हदीस सिर्फ ईमान बताने वाली है, हक़ बताने वाली है, ये शेख साहब का कहना है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। सफ़ा बैतुलमाल शाख भैंसा के ज़ेर एहतमाम मौसम गर्मा के पेश नज़र न्यू शोएब मेडिकल नज़द बस स्टैंड पर कोल्ड वाटर फ्रिज का इंतज़ाम किया गया, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर काशीनाथ सुपरिटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल ने किया। इस मौके पर सफ़ा के ज़िम्मेदार हाफिज़ मुनीरुद्दीन, मुफ्ती इरफान, मौलाना मुजाहिद, शेख इरफान, शकील खान दाऊद और दीगर मौजूद थे।